Hello friends, I welcome to you in my YouTube channel Educator Sanjeev. Please subscribe our channel and hit the bell icons for more regular updates. Today we are discussing preparation of cash flow statement. First point are cash flow statement. Preparation of cash flow statement. Having first point are compute cash flow from operating activities. Second is cash flow from investing activity. Third is compute the cash flow from the financing activity. These are the three activities. And fourth point is compute the net increase or decrease in cash and cash equivalent. Fifth are net increase and decrease in the cash and cash equivalent is added to the cash equivalent in the beginning to arrive at cash and cash equivalent at the end. Second point of the preparation of cash flow statement: operating activities. These are the main revenue generating activities of an enterprise. As such, they include the cash flow from those transactions and events which enter into the ascertainment of net profit or loss of the enterprises. Third point of preparation of cash flow statements are investing activities. Investing activity include the purchase and sale of long-term assets such as land, building, plant, machinery, etc. Not hold for this resale. These activities also include the purchase and sale of such investment which are not included in cash equivalent. Fourth point of preparation of cash flow statement are fourth point of financing activity. These are the activities that result in change in capital borrowing of the enterprises. The next point are the first next head are transaction not regarded as cash flow. The movement in between the items of cash and cash equivalent are not cash flow, like cash deposit, withdraw from bank for use in business. Non-cash transactions are those transactions in which cash and cash equivalent does not take place. For example, depreciation, amortization expenses, issue of bonus, shares of equity, shares of debentures, or for consideration other than cash, conversion of debenture into new debenture shares. So guys, we are starting the format of cash flow statement. Format of cash flow statement, we have we make the cash flow statement little bit. Next line we write cash flow statement. Next line we write for the year ended as per section 3 revised. Firstly we make boxes. First are particular, second is amount, and third column also in amount. In second column we can say that this amount is details. You write here details also. First point are we say know the cash flow from operating activities. Firstly we are find out the net profit before tax and extraordinary items. We have to discuss this point. Is a working note number 1. We are discussing it last to resolve that problem of नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम. इसे हम लास्ट में सॉल्व करेंगे. इस वर्किंग नोट 1 को समझाएंगे. चलो ठीक है. फिर नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं. सीधा नेक्स्ट है ऐड. इसमें इसी नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में हम ऐड करेंगे डेप्रिसिएशन और ऐड करेंगे गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, अमोर्टाइज्ड रिटर्न ऑफ, मतलब जो घटी हो. ऐड इसमें करेंगे इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म बोरोइंग और ऐड करेंगे लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट इन्वेस्टमेंट. उसके बाद हम ऐड करेंगे ऐड प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर डिवेंचर और लेस करेंगे प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स एंड इन्वेस्टमेंट. लेस करेंगे इंटरेस्ट इनकम, लेस करेंगे डिविडेंड इनकम, लेस करेंगे रेंटल इनकम. जब हम ये सब सॉल्व कर लेंगे तो इसका हम आंसर डिटेल साइड में लिखेंगे और इसका भी निकलेगा हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस. उसके बाद इस पॉइंट के बाद हम इसमें वर्किंग कैपिटल में ऐड करेंगे डिक्रीज इन करेंट एसेट एंड इंक्रीज इन करेंट लायबिलिटीज. फर्स्टली वी नोट दैट द पॉइंट है डिक्रीज इन इन्वेंट्रीज, decrease in trade recoveries, debtor bill receivable, in decrease in accrued income,
डिक्रीज इन प्रीपेड एक्सपेंसेस, और माइनस करेंगे इसमें हम, जैसे माइनस या राइट ऐड करेंगे इसमें ही, इंक्रीज इन ट्रेड पेएबल, क्रेडिटर बिल्स पेएबल। सेकंड पॉइंट आर द इंक्रीज इन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस और इंक्रीज इन एडवांस इनकम्स। इन सब में ही वर्किंग कैपिटल में ये सब ऐड करेंगे जो भी चीज़ बताइए। अब जो हम माइनस करेंगे उस चीज़ को बताते हैं। इंक्रीज इन करेंट एसेट एंड डिक्रीज इन करेंट लायबिलिटीज। इंक्रीज इन इन्वेंट्रीज, दिस प्रॉब्लम ये सब चीज़ें माइनस होंगी। लाइक इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल, डेब्टर बिल रिसीवेबल, इंक्रीज इन एक्रूड इनकम, इंक्रीज इन प्रीपेड एक्सपेंस, डिक्रीज इन ट्रेड पेएबल, डिक्रीज इन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, डिक्रीज इन एडवांस इनकम। ये सब चीज़ें वर्किंग नोट में वर्किंग कैपिटल चेंज में माइनस करेंगे। इसके सब प्लस और माइनस को वर्किंग कैपिटल में फर्स्टली वे एट द डिक्रीज इन करंट एसेट एंड इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज, this point we have to make add, and next point is less increase in current asset and decrease in current liabilities, ये सब माइनस होंगे। इसके बाद जो भी चीज़ आएगी इसको सॉल्व करने के बाद हमारा लिखेंगे कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। इसमें से लेस करेंगे हम इनकम फ्रॉम पेड नेट ऑफ रिफंड ऑफ टैक्स, और उसके बाद हम इसमें से जो आंसर आएगा उसको लिखेंगे कैश फ्लो बिफोर एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स। फिर एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स को प्लस और माइनस करेंगे। उसके बाद हमारा आएगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। जब आंसर प्लस में होगा तो इसको लिखेंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। जब आंसर माइनस में आएगा तो इसको लिखेंगे कैश फ्लो फ्रॉम यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। सेकेंड हेड पे आते हैं हम, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी को हम सॉल्व करेंगे। इसमें फर्स्टली पॉइंट आएगा प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ फिक्स एसेट, जो सेल करके आएगी फिक्स एसेट की वैल्यू वहाँ लिखेंगे। प्रोसीड ऑफ सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट की भी, प्रोसीड फॉर सेल ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स भी यहीं आएगी ऐड में। फिर लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन डिविडेंड रिसिप्ट, ये भी ऐड होगा। रेंटल इनकम भी इसमें ऐड होगी, रेंटल इनकम भी इसमें हम ऐड करेंगे। उसके बाद हमारा आएगा रेंटल इनकम भी हमारा ऐड होगा। उसके बाद परचेज ऑफ फिक्स एसेट आएंगे, उसको हम माइनस करेंगे। परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट ये भी माइनस होगा, ये सब चीज़ें माइनस होंगी। और परचेज ऑफ इंटेंजिबल एसेट भी माइनस होगी। और उसके बाद एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स भी इसमें प्लस होगा या माइनस होगा, दोनों आपको देख लेना है। कैश फ्लो फ्रॉम यूज इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज ये लिखेंगे। अगर कैश फ्लो फ्रॉम एड आंसर प्लस में आ रहा है तो इसको फ्रॉम इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी लिखेंगे, माइनस में आएगा तो कैश फ्लो फ्रॉम यूज्ड इन इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज़ लिखेंगे। और सिक्स्थ पॉइंट हमारा आ गया सी पॉइंट, मीन्स कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ शेयर्स, प्रोसीड फ्रॉम इशू ऑफ डिबेंचर्स, प्रोसीड फ्रॉम अदर लॉन्ग बोरोइंग। these points are all 3 points are in plus। नेक्स्ट पॉइंट है रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर प्रेफरेंशियल इज माइनस में आएगा। रिपेमेंट ऑफ लोन्स आएगा माइनस में, डिविडेंड पेड आएगा माइनस में, और इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म बोरोइंग ये भी आएगा माइनस में। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स को प्लस और माइनस आपको देख लेना कॉपी में। आंसर अगर प्लस में आएगा तो लिखेंगे कैश फ्लो फ्रॉम इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी, या क्लास माइनस में आएगा तो लिखेंगे कैश फ्लो यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। नेट इंक्रीज डिक्रीज इसके बाद करेंगे हम कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ का जो इसका आंसर आएगा। इसके बाद हम इसको लिखेंगे नेट इंक्रीज और डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। इसमें हम पहला दूसरा तीसरे को सबको जोड़ लेंगे और इसका आंसर सीधा बाहर लिख देंगे। उसके बाद है तीसरा बी, ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। जो ओपनिंग कैश एंड पे होगा उसको ऐड करेंगे और क्लोजिंग कर देंगे। इसके बाद जिसका आंसर सॉल्व करके तो ये हमारा क्लोजिंग आ जाएगा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट इन दोनों को ऐड करके। मतलब जो नेट इंक्रीज डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट और ऐड करेंगे ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, तो इससे हमारा क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आ जाएगा। मीन्स ये हमारा आंसर हो जाएगा। उसके बाद ये हमने बोला था कि वर्किंग नोट्स हम लास्ट में डिसाइड करेंगे, तो लास्ट में वर्किंग नोट्स लाइक ऐसे बनेंगे। इसमें फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। तो इसमें जो हमारा सरप्लस या बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस दिया होगा क्लोजिंग उसको लिखेंगे वहाँ। उसके बाद इसमें माइनस करेंगे सरप्लस बैलेंस स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट, इसमें माइनस करेंगे ओपनिंग बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस को। और जो प्रॉफिट फॉर द ईयर इसका आंसर इसमें जो प्लस माइनस सोल्व करेंगे उसका आ जाएगा ये प्रॉफिट फॉर द ईयर।
इसमें ऐड करेंगे रिजर्व, और इसमें ऐड करेंगे प्रोविज़न फॉर टैक्स करेंट ईयर, ऐड करेंगे प्रोपोज डिविडेंड करेंट ईयर का, और ऐड करेंगे इंटरिम डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर। इसे सारी चीज़ें ऐड होंगे। इसमें माइनस करेंगे ट्रांसफ़र फ्रॉम रिजर्व, और इसमें जो सबको सॉल्व करके आंसर आएगा लास्ट में उसको लिखेंगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स।